So students, we now continue with integration MCQs, and this is part 23. We have done up to problem 179. All right, in fact problem 79. We come to problem 80 now. This problem we have already done in our 12th standard. We write the formula for sin 2x as 2 sin x cos x. We remove sin x common, bracket में 2 cos x plus 1. Now these are factors in cos x. These are factors in cos x. So we have to put cos x equal to t. For that we adjust the derivative. Cos x का derivative है minus sin x, जो यहाँ पे present नहीं है. So we will multiply and divide by sin x. अब डिनोमिनेटर को cos x में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि cos x वाला फैक्टर्स चाहिए. तो sin स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x, जिसका दो फैक्टर्स आएगा 1 माइनस cos x therefore integral I will become sin x dx upon these are factors in cos x. So we will put cos x equal to t. Minus sin x will become dt by dx. Therefore sin x dx will become minus dt. Integral I will become minus dt upon this minus we will take inside. We will say now say let minus 1 upon 1 minus t, 1 plus t, 2t plus 1, a upon 1 minus t, b upon 1 plus t and c upon 2t plus 1. So what will be a? a के लिए b and c को भूल जाने का, तो आएगा minus 1 upon 1 plus t into 2t plus 1 when t equal to 1. ये 1 माइनस टी को 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू 1 आएगा. ये b और c वाला फैक्टर्स भूल जाने का, ये b और c भूल जाने का, तो 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा. अब दिस विल बिकम क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3. सो माइनस 1 बाई 6. देन b विल बिकम माइनस 1 अपॉन 1 minus t into 2t plus 1 when t equal to minus 1. ये 1 plus t को 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू आएगा -1. This will become -1 upon
t माइनस वन है तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एंड माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1, तो वैल्यू आएगा 1/2 एंड c आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2t प्लस 1। t का वैल्यू माइनस हाफ आएगा। This will become minus 1 upon half and this will be ये 2t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, तो इधर आएगा 3/2, सो दिस विल बिकम माइनस 4/3। Therefore, minus 1 upon will become minus 1/6 upon 1 minus t plus 1/2 upon 1 plus t and minus 4/3 upon 2t plus 1. So integral I will become minus 1/6 log 1 minus t upon minus 1 plus 1/2 log 1 plus t upon 1 and minus 4/3 log 2t plus 1 upon 2 plus c। तो ये 2 और ये 4 कैंसल होके 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आएगा 1/6 log 1 माइनस cos x देन प्लस 1/2 log 1 प्लस cos x एंड minus 2/3 log कंपेयर इट विद द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे k लैम्बडा और म्यू दिया है, तो k का वैल्यू आएगा, दिस वुड बी k, दिस वुड बी लैम्बडा, दिस वुड बी म्यू, k lambda and mu. The answer is 1/6, 1/2 and minus 2/3. Option C is the answer. Option C. ये प्रॉब्लम एज अ रिविजन हमने किया है. दिस प्रॉब्लम cannot be done in 2 minutes, so not likely to be asked in the exam. All right, but just to revise this method, we have done this. Problem 81. 81 is a problem based on repeated partial fractions. Three x plus 1 upon x minus 2 the whole square into x plus 2. Again, this we are doing as a revision. We have to write a upon the base, b upon the actual factor and c upon the other linear factor. a upon the base, जो फैक्टर रिपीट हो रहा है पहले उसका बेस, फिर जो एक्चुअल फैक्टर है और फिर अदर फैक्टर, वी क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x plus 1 will become a टाइम्स, ये दोनों फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x minus 2 into x plus 2, b टाइम्स x plus 2 and c times x minus 2 the whole square. Now
व्हाट वैल्यूज डू वी कीप? एक वैल्यू होगा, ए के डिनोमिनेटर को 0 बनाएंगे, सो x इज इक्वल टू 2, एक आएगा x इज इक्वल टू -2, और तीसरा वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 0 डाल के। ये दो वैल्यूज को छोड़ के कोई भी एक वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 यहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 यहां से मिलेगा। ये दो वैल्यूज को छोड़ के कोई भी एक तीसरा वैल्यू डाल सकते हैं। तीसरा वैल्यू से x इज इक्वल टू 0, ये 2 और -2 को छोड़ के, तो क्या होगा? 3 2 6 + 1 7, इधर 2 -2 0 हो जाएगा, इधर भी 2 -2 0 हो जाएगा। विल गेट वैल्यू ऑफ b, b में 2 + 2 4 हो जाएगा, सो b आएगा 7/4। नाउ पुट -2 डालेंगे तो ये -6 + 1 -5 हो जाएगा, इधर -2 + 2 0, इधर भी -2 + 2 0, c आएगा -2 -2 -4 का स्क्वायर, x का वैल्यू -2 डालेंगे, c टाइम्स 16, तो c आएगा -5/16, एंड 0 डालेंगे तो आएगा, ये 0 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -2 × 2, b टाइम्स 2 एंड c टाइम्स -2 का स्क्वायर, x का वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 - 2 इज -2, 0 + 2 इज 2, 0 + 2 इज 2, 0 - 2, so this will become -4a + 2b + 4c, -4 times a, -4a is the unknown, and 2b, b का 2 times will be 7/2, and 4 times will be -5/4, so 4a is equal to LCM लेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर आएगा 14 - 5 -4, so it will be 5/4, so value of a आएगा 5/16। 99.9% जब भी ये रिपीटेड वाला पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आएगा, जो वैल्यू c का आएगा 99.9% आपका a का वैल्यू इसका नेगेटिव आएगा। ये -5/16 है तो इधर +5/16, अगर ये याद रहेगा तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, या आपका a का वैल्यू लगभग मोस्टली देयरफॉर क्या होगा? 3x + 1 अपॉन x - 2 the whole square into x + 2. What is a? 5/16 upon x - 2. Value of b is 7/4 and -5/16 upon x + 2. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 5/16 log x - 2, 7/4 -1 upon x - 2 and -5/16 log x + 2 plus c, तो आएगा आंसर 5/16 log x - 2 -7/4 1 upon आपका k लैम्बडा और म्यू आएगा, k आएगा 5/16, लैम्बडा आएगा
-7/4, म्यू आएगा -5/17। आंसर आएगा ऑप्शन बी। आंसर आएगा ऑप्शन बी। एटी टू 83 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 82 and 83, these two problems can be asked in the exam. All right, 82 and 83. Three x minus 1 upon x minus 2 the whole square. ये टाइप का सम हमने पहले किया है। हमने सिनॉप्सिस लिखा था ये टाइप का, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू एन, और ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी रेस टू एन। वी हैव टू एक्सप्रेस ए एक्स प्लस बी इन टर्म्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। जहां पावर है उसका जो बेस है, ऑलराइट, जो विदाउट पावर वाला टर्म है उसको जो पावर वाला टर्म है उसके बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस ए एक्स प्लस बी इन टर्म्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो पहले ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक्स वाले टर्म्स को। 3x अपॉन एक्स विल बिकम 3। नाउ 3 टाइम्स ये जो 3 आया वो इधर लिखा, फिर x माइनस 2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट किया। अब ये क्या आएगा, 3x जो ऊपर है, देन -6 ऊपर नहीं है तो कॉम्पनसेशन में +6। ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा, -1 एज इट इज। दिस इज 3 टाइम्स। ये ब्रैकेट्स को रीओपन करेंगे तो यही टर्म वापस आएगा। हमने सिर्फ एक्सप्रेस किया है, इट इज द सेम ओनली। यही टर्म को डिफरेंटली एक्सप्रेस किया है सिर्फ। नाउ इसको स्प्लिट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 विल रिमेन एज इट इज, log x माइनस 2 अपॉन 1, 5 विल रिमेन एज इट इज, -1 अपॉन ये 1/x² का -1/x हो जाएगा। आंसर आएगा 3 log x माइनस 2 -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी। अगेन आंसर आएगा ऑप्शन डी, 3 log x माइनस 2 -5 अपॉन x प्लस -5 अपॉन x माइनस 2। आंसर आएगा डी। 83, ये नंबर 3 कहां से आया, ये 3x और x को डिवाइड कर दिया, ऑलराइट, तो 3 आएगा। तो पहले 3 लिखा, फिर जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म ऊपर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करो मेंटली। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 6, ऊपर -6 नहीं है तो उसका कॉम्पनसेशन +6, तो 6 - 6 कैंसिल होके सिर्फ -1 यहां आएगा यहां पे। नेक्स्ट 83, sin 2x upon 3 plus 2 sin x the whole square. These are factors in sin x. So we have to put sin x equal to t. These are factors in sin x. So we put sin x equal to t. उसके लिए sin x का डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे, तो sin 2x का
we'll say let sin x equal to t. Cos x dx will become dt. So what will integral I become? 2t dt upon 2t plus 3 the whole square. Again we do adjustment. ये 2t और 2t को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 2t प्लस 3 है तो ऊपर भी 2t प्लस 3 लाना पड़ेगा, तो वी विल एड एंड सब्ट्रैक्ट, स्प्लिटिंग. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाई 2 आएगा, 1/2 log 2x plus 3 एंड माइनस 3/2 कोएफिशिएंट 2 है एंड -1 अपॉन, तो आंसर आएगा 1/2 log ऑफ 2 sin x plus 3 एंड प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स 2 sin x plus 3. We are using this formula 1 by x square का इंटीग्रेशन -1 by x होगा, तो ये 1 by x minus 2 का स्क्वायर है, कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 एंड -1 अपॉन, यहां पे कोएफिशिएंट t का 2 है दैट इज वाई डिवाइड बाय 2. इन -1 बाई टी स्क्वायर +1 बाई टी स्क्वायर का -1 बाई टी आएगा. ऑलराइट, कंपेयरिंग विद दी राइट हैंड साइड, k का वैल्यू हाफ और लैम्बडा का वैल्यू 3/2, हाफ एंड 3/2. ऑप्शन ए, k आएगा हाफ, लैम्बडा आएगा 3/2. k आएगा हाफ, लैम्बडा आएगा 3/2. So with this we complete problems based on partial fractions. All right, partial fraction based जितना भी MCQs था वो हमने कर लिया. Now we are doing integration by parts, that is type 4. ये 82 and 83 दोनों important था. Integration by parts. Now the rule for integration by parts is, this is the normal u into v rule. u इंटीग्रल v dx माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट अगेन इंटीग्रेट. इंटीग्रल u इंटू वी इज u इंटीग्रल v dx, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट. ऑलराइट, अब हम जो करने वाले हैं, दिस इज टॉट इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, नॉट फर्स्ट ईयर, second year engineering. This is extended u into v rule. This we have to use for two types of problems, algebraic and trigonometric or algebraic and exponential. Algebraic trigonometric or algebraic exponential. For 12th standard we have to look at these two type of problems. All right, I will explain with the help of two examples. X square into cos x, we use eyelet. Algebraic and trigonometric, ये u और ये v. अब ये जो रूल है इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं. यहां पे u लिखने का, एक्स स्क्वायर बाजू में उसका डेरिवेटिव लिखने का 2x, बाजू में उसका डेरिवेटिव लिखने का 2. दिस
You have to differentiate continuously till you get constant. X square उसका डेरिवेटिव 2x, उसका डेरिवेटिव 2. यहां पे लिखना है v का इंटीग्रेशन, यहां पे लिखना है v का इंटीग्रेशन. v नहीं लिखना है, इंटीग्रल v लिखना है. cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर उसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट कंटिन्यूअसली. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स. देन द आंसर इज answer is the sum of the products of each column. एक एक कॉलम के टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का एंड द साइन ऑफ ऑल्टरनेट प्रोडक्ट टू बी चेंज्ड. मतलब पहले और तीसरे प्रोडक्ट का साइन सेम रखने का, सेकेंड प्रोडक्ट का साइन चेंज करने का. सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर साइन एक्स. द इंटीग्रल विल बी एक्स स्क्वायर साइन एक्स देन माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2x cos x एंड ये प्रोडक्ट जिसका साइन सेम रखना है. पहले एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है. एल्जेब्रिक टर्म u यहां पे लिखने का, बाजू में उसका डेरिवेटिव, बाजू में उसका डेरिवेटिव. यहां पे सेकेंड टर्म में v नहीं लिखना है, इंटीग्रल v लिखना है. सो साइन x, फिर उसको इंटीग्रेट करना है माइनस कॉस x, उसको इंटीग्रेट करना है माइनस साइन x. यू हैव टू डिफरेंशिएट टिल यू गेट अ कांस्टेंट एंड यू हैव टू इंटीग्रेट. द आंसर इज ये प्रोडक्ट का साइन चेंज, ये प्रोडक्ट प्लस c. Product, sum of product of each column. The answer is sum of the product of each column. Sign of alternate product to be changed. For example, second example, x cube into e raised to x. This is again algebraic and exponential. algebraic and exponential. algebraic आएगा u, exponential आएगा v. सो टेबुलर फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट. u एंड इंटीग्रल v. x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 6x का डेरिवेटिव लेंगे तो 6. You have to differentiate the first column. Differentiate continuously till you get a constant. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव 6. e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, e रेस टू x, e रेस टू x, e रेस टू x. तो आंसर आएगा एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स ये प्रोडक्ट, देन इसका साइन चेंज माइनस 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स
देन सिक्स एक्स इंटू ई रेस टू एक्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ प्रोडक्ट का साइन चेंज करने का, सो माइनस सिक्स ई रेस टू एक्स, वी कैन रिमूव ई रेस टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। पहले टर्म को डिफरेंशिएट करने का, दूसरे टर्म को पहले ही इंटीग्रेट करने का, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, उसका इंटीग्रल ई रेस टू एक्स, उसका ई रेस टू एक्स, उसका भी ई रेस टू एक्स। ये प्रोडक्ट पहला टर्म, ये प्रोडक्ट का साइन चेंज दूसरा टर्म, ये प्रोडक्ट तीसरा टर्म, ये प्रोडक्ट का साइन चेंज चौथा टर्म। दैट इज द आंसर। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस प्रॉब्लम्स ऑफ आइदर एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक or algebraic exponential. Now we come to some standard results. Standard results. We come to the standard results now. These are frequently used formulas. x cos x का आएगा x sin x plus cos x plus c. We can easily check this by applying our normal u into v rule. x sin x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, एक्स ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। नंबर फोर लॉग एक्स, लॉग एक्स जो है उसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला 12th में नहीं है। यहां पे आएगा x ब्रैकेट्स log x माइनस वन या x ब्रैकेट्स log x अपॉन ई प्लस सी। ये जो वन है, वन के बदले log e लिख सकते हैं, एंड log x माइनस log e बिकम्स log x अपॉन e। ये दो आंसर्स हैं log x के लिए। log x को नॉर्मली हम लिखते हैं log x इंटू वन, log x इंटू वन करके इंटीग्रेट करते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, 12th में नहीं है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लिए है, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एमसीक्यूज। साइन इनवर्स एक्स का x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का अगेन इसको इंटू वन करके कर सकते हो। साइन इनवर्स x को लिख सकते हो साइन इनवर्स x इंटू वन एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये आंसर आएगा। tan इनवर्स x अगेन इंटू वन लिख के कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो। These are important results, very important। ये सब रिजल्ट्स आपको लर्न करना है 5 टाइम्स लिख के। ऑलराइट, नंबर 9,
इंटीग्रल x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x विल बिकम x रेज टू x. द रीजन इज हमने डेरिवेटिव में ये सिनॉप्सिस लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x. ये हमने डेरिवेटिव सिनॉप्सिस में लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x. x रेज टू x का x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x. इधर जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन बन जाएगा और इधर जो क्वेश्चन है वो उधर आंसर बन जाएगा. नंबर 10, x के साथ f डैश x प्लस एफ एक्स. आंसर आएगा x इंटू एफ एक्स. आंसर का डेरिवेटिव लेके चेक करो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो डेरिवेटिव का. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव. तो ये बन जाएगा x के साथ f डैश x एंड एफ एक्स के साथ 1. अब ये जो इधर आंसर आया, ये जो इधर आंसर आया वो इधर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में. ये जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन है. तो ऑब्वियसली इधर जो क्वेश्चन है वो इधर आंसर बन जाएगा. आंसर बिकम्स क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बिकम्स आंसर. ऑलराइट, तो ये 10 फॉर्मूला आपको लर्न करना है. ऑलराइट, इसके आगे भी जैसे ही सिनॉप्सिस की जरूरत पड़ेगी विल बी डूइंग सम मोर सिनॉप्सिस. But now let us start with the problems. ये सब फॉर्मूला हम नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड मेथड से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वी नीड स्पीड एंड एक्यूरेसी. सो दैट इज वाई वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला एंड लर्न इट वेरी वेल. ऑलराइट, नॉर्मल मेथड से करने को जाओगे तो टाइम ज्यादा जाएगा. इफ यू नो द फॉर्मूला इट इज इजियर टू यूज इट. Question 84. We use ILATE. पहले आएगा ये एल्जेब्रिक और ये लॉगरिथमिक है. पहले आएगा लॉगरिथमिक फिर आएगा एल्जेब्रिक. ये u और ये v. क्या होगा फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसमें एक्सटेंडेड u इंटू वी रूल नहीं आएगा. सेकेंड का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट. log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, log x का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx. ये x और एक्स क्यूब कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x, 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का फिर से एक्स क्यूब बाई 3. वी कैन रिमूव एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन या एक्स क्यूब बाई 9 कॉमन ले लेंगे. This will become actually इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 किया. नाउ वी कैन रिमूव एक्स क्यूब बाई 9 कॉमन. ब्रैकेट में 3 log x माइनस 1. आंसर आएगा ऑप्शन सी 85. एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x.
दिस इज नाउ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक. एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सटेंडेड u इंटू वी रूल इजी होगा. ये u और ये v. अब एक्सटेंडेड u इंटू वी रूल यूज करेंगे. इधर u इधर इंटीग्रल v. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2. ये साइन 3x का आएगा -1/3 cos 3x. साइन 3x का इंटीग्रेशन -1/3 cos 3x -1/9 sin 3x. ये cos 3x का sin 3x एंड अपॉन 3. ऑलराइट, एंड इसका आएगा 1/27 cos 3x. sin 3x का -1/3 आएगा, ऑलरेडी -1/9 है. तो अभी आंसर आएगा क्या होगा? इंटीग्रल आई ये प्रोडक्ट दैट इज द फर्स्ट टर्म minus x square by 3 cos 3x. देन ये प्रोडक्ट का साइन चेंज, सेकेंड प्रोडक्ट का साइन चेंज तो आएगा प्लस 2x by 9 इंटू साइन 3x. एंड ये तीसरे प्रोडक्ट में जो साइन है वो ही रहेगा. So 2/27. आंसर आएगा -x² by 3 प्लस 2x sin 3x एंड 2/27. ऑप्शन सी. आंसर आएगा ऑप्शन सी. इंटीग्रल x इंटू tan इनवर्स x. अगेन वी यूज आइलेट. इनवर्स एंड एल्जेब्रिक. पहले आएगा इनवर्स फिर आएगा एल्जेब्रिक. इनवर्स एंड एल्जेब्रिक तो इंटरचेंज करेंगे. इसको u और इसको v ले लेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, देन पहले का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट, 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x ये हाफ कॉमन निकल जाएगा. ये हाफ कॉमन निकल जाएगा. ऑलराइट, अब इधर पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है. एडजस्टमेंट मेथड, ऐड 1 सबट्रैक्ट 1, इसको स्प्लिट कर दिया. इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा
के का वैल्यू आएगा हाफ, यही आंसर दिया है, यहां पे के आएगा हाफ। नेक्स्ट 87, 86, 87 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। 86, 87 इनफैक्ट अप टू अप टू 89 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। Again we use eyelet. Inverse and algebraic. So we apply the rule for integration by parts. First function as it is, second का integration. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट। We'll put substitution 1 plus x square equal to t. So x square will become t minus 1. Two x is equal to dt by dx. Therefore x dx will become dt by 2. So integral I will become आगे 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे t माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे t एंड x dx के जगह पे dt बाई 2। ये t माइनस 1 अपॉन t को स्प्लिट कर देंगे। So integral I will become ये बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, वी टेक एलसीएम, तो आगे 1/6 आ जाएगा।
ये c और -1 को कंबाइन कर देंगे, ये c और ये -1 को कंबाइन करके नया c लिखेंगे। दिस इज द आंसर। वैल्यू ऑफ k आएगा 1/6, वैल्यू ऑफ k आएगा 1/6। 88, this is again algebraic and trigonometric, algebraic and trigonometric। तो इसको u और इसको v ले लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है साइन स्क्वायर का कन्वर्जन फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हाफ बाहर आ जाएगा, दिस इज नाउ u into v। we'll apply extended u into v rule। u आएगा x, उसका डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ v, वन का इंटीग्रेशन होगा x cos 2, 1 का x होगा और cos 2x का हाफ साइन 2x। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, x का x² 2 एंड प्लस साइन 2x का माइनस हाफ cos 2x, ऑलरेडी माइनस हाफ है तो प्लस 1/4 हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर? तो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट एज इट इज और इसका साइन चेंज। तो आंसर आएगा x² x साइन 2x/2 माइनस x²/2 माइनस cos 2x/4 प्लस c। अब ये दोनों को हम कपल कर देंगे, x² एंड माइनस x²/2 विल गिव यू x²/2। We can take half common, इनफैक्ट यहां पे 2 आएगा। We can take half common, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस x साइन 2x माइनस हाफ cos 2x प्लस c। तो वैल्यू ऑफ k आएगा हाफ, वैल्यू ऑफ k आएगा हाफ। नेक्स्ट 89, x इंटू साइन 2x इंटू cos 5x
अगेन एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक x है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये प्रोडक्ट है, तो ये लेंगे u, ये लेंगे v, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 cos A sin B is sin A plus B माइनस sin A माइनस B। एक बार दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, ये 5x और 2x को ऐड करके 7x आया, और 5x और 2x को सब्ट्रैक्ट करके 3x आया। दिस इज नाउ u इंटू v। सो वी अप्लाई extended u into v rule। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1/7 cos 7x sin 7x का -1/7 cos 7x प्लस 1/3 cos 3x। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1/49 sin 7x एंड प्लस 1/9 sin 3x। तो आंसर आएगा, आगे हाफ मेंटेन रहेगा और ये प्रोडक्ट, सो -x/7 cos 7x प्लस x/3 cos 3x, ये दोनों का साइन चेंज, तो 1/49 sin 7x एंड -1/9 sin 3x प्लस c। ये प्रोडक्ट का साइन सेम रखेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो 1 इंटू -49, तो 1/49 हो जाएगा, -1/49 साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1/9 का -1/9 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी आपका आंसर आएगा -1/14 x sin 7x -1/14 x cos 7x, then 1/98 sin 7x, then plus 1/6 x cos 3x and -1/18 sin 3x plus c। कंपेयर इट, तो आपका k आएगा -1/14, इनफैक्ट ये a आएगा, ये b होगा, ये c होगा और ये d होगा। -1/14 प्लस 1/98 माइनस प्लस 1/6 and -1/18। ऑप्शन C is the answer. Option C is the answer. $90.
x sin inverse x upon root 1 minus x square. We'll put sin inverse x equal to t. X will become sin t. Dx upon root 1 minus x square will become dt. So integral I will become x के बदले sin t लिखेंगे, sin इनवर्स x के बदले t लिखेंगे और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे dt लिखेंगे. So this will become integral t into sin t. This will be minus t times cos t plus sin t plus c. This is using the synopsis. Now we know the value of t, we know the value of sin t. We have to find cos t. What is cos square t? 1 minus sin square t, that is, what is sin t? X. So 1 minus x square. So what will be cos t? Under root 1 minus x square. तो आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. t के जगह पे साइन इनवर्स x, cos t के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c. Sin inverse x, this t into sin t is like x into sin x. x sin x का डायरेक्ट सिनॉप्सिस है. ऑलराइट, नेक्स्ट 91. 91 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. 90 एंड 91 को. 90 एंड 91. cos root x is like, ये cos x नहीं है, cos u है. sin u cos u या e raised to u होगा. We have to put u equal to t. So we have to put root x equal to t. यहां पे root x का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो स्क्वायर कर देंगे. x will become t square. डेरिवेटिव ले लेंगे. dx by dt will be 2t. So dx will become 2t dt. So integral I will become cos t into 2t dt. ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक. दिस इज लाइक x cos x जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है t sin t प्लस cos t प्लस c. दिस इज गिवन इन द सिनॉप्सिस. अभी आज जो हमने सिनॉप्सिस डिस्कस किया, बैक सब्सटीट्यूटिंग 2 टाइम्स रूट एक्स $92. This will be directly synopsis. x raised to x का x raised to x into 1 plus log x है. Alright. $93. We are given fx is sin inverse x upon root 1 minus x square
and gx is e raised to sine inverse x. We have to find integral of fx into gx. That will be integral of (93 to 96) मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट. 93 to 96. This is e raised to u, where u is equal to sine inverse x. So we'll put sine inverse x equal to t. डेरिवेटिव प्रेजेंट है. So what will integral I become? Sine inverse x is t e raised to t dt. This is sine inverse x is t e raised to sine inverse x is e raised to t, and dx upon root 1 minus x square will become dt. So what will integral become? आज ही हमने दिया x e raised to x का फॉर्मूला. आंसर आएगा e raised to x into x minus 1. तो आंसर आएगा e raised to sin inverse x sin inverse x minus 1 plus c. ऑप्शन आएगा ए. 94. log x upon x. We'll put log x equal to t. One by x is equal to dt by dx. So dx upon x becomes dt. So integral I will become log t dt. ये dx अपॉन x dt बन जाएगा. dx अपॉन x will become dt and log t. ऑलराइट, अगेन log t का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन में. क्या फॉर्मूला है? t ब्रैकेट्स log t माइनस 1. दिस इज डायरेक्ट सिनॉप्सिस. आंसर आएगा log x ब्रैकेट्स log ऑफ log x ब्रैकेट log ऑफ log x माइनस 1. log x ब्रैकेट्स log ऑफ log x माइनस 1. ऑप्शन बी. 95. सिंगल इनवर्स या सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो इंटू 1 वाला मेथड यूज करेंगे. लॉगरिथमिक को u, एल्जेब्रिक को v. सो वी अप्लाई रेगुलर u इंटू v रूल. log x द होल स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 का इंटीग्रेशन x,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव log x the whole square is like u square, so 2 log x डेरिवेटिव ऑफ log x 2u du by dx, ये 1 का इंटीग्रेशन होगा x टाइम्स log x the whole square माइनस 2 log x into 1 by x into x, this will become x times 2 will come out and log x, क्या फॉर्मूला है log x का? log x का फॉर्मूला है x ब्रैकेट्स log x minus 1 plus c, this is using synopsis. तो आंसर x वी कैन टेक कॉमन, ब्रैकेट में आएगा log x द होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c, ये होगा fx. ये होगा fx. 96. साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यू इंटू वी रूल या तो सब्सटीट्यूशन से. लेट अस डू बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. कॉस थीटा इक्वल टू टी माइनस साइन थीटा इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा. देयरफॉर साइन थीटा डी थीटा विल बिकम माइनस डी टी. क्या होगा? ये साइन थीटा इंटू डी थीटा विल बी माइनस डी टी एंड कॉस थीटा इज टी. ये माइनस बाहर आ जाएगा, t is cos theta and 1 minus log of plus c. cos theta brackets 1 minus log of cos theta. ऑप्शन आएगा C. 95 में ऑप्शन था C. सो स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का एमसीक्यूज खत्म करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एमसीक्यू स्टार्ट किया. ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे. ऑलराइट, द एमसीक्यूज ऑफ इंटीग्रेशन विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अनदर 25 एमसीक्यूज टू गो. ऑलराइट, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.